सो आई थिंक और एक जैसे उन्होंने अपनी शुरू में एक फिगर शेयर करी थी कि जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, उसका रेशियो टू द जनरल पब्लिक इज वेरी लेस, बिकॉज क्लियरली जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इन जनरल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना ज्यादा कम है हमारी कंट्री में, और इट्स अ लिटिल वीक टू केटर टू द नीड्स ऑफ आवर एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो उसमें मेंटल हेल्थ की बात तो खैर बहुत बाद में आती है, बिकॉज बेसिक फैसिलिटीज ही अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। सो आई थिंक इसका एक और जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड रहें, and this is I think something that we can do on our own to overcome these issues that develop and grow over a period of time. So channels of communication and being connected to people around us. जैसे एक ये जो मीडियम है जहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं, आई थिंक इवन दिस फॉर एग्जांपल, a very small example, but yes, plays a big part in keeping us sane and helping us distract ourselves from any negative thoughts. So I think काफी एक अच्छा point उन्होंने share किया था, and I'm just adding a little something that I had in my mind. Now coming to what I had to share, मैंने last time share किया था last week. मैं book जो पढ़ रहा हूँ उसका नाम है Sapiens, which is written by Yuval Noah Harari, who is the writer. So last time बात करी थी basically वो cognitive revolution से related थी. Cognitive revolution was the first kind of revolution जो humans ने experience किया था, और other homo sapiens ने experience किया था. Hello? Yeah, yes, we can hear you. Okay, yeah. So जो सबसे interesting चीज मेरे को लगी वो ये थी कि when so this book is divided into 4 parts. First part is the agricultural revolution, the cognitive revolution, and second part is the agricultural revolution. जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा, जैसे I'm on the 5th chapter right now basically, which is the first chapter of part 2, the agricultural revolution. उसमें this book talks about how humans transitioned from the cognitive revolution to the agricultural revolution. तो उसमें जब मैं agricultural revolution की बात करता हूँ, what I mean is domestication of animals, domestication of crops like wheat, barley, maize, rice. So एक ये इसमें बताया है, और सरप्राइजिंगली इस चैप्टर का जो नाम है, इट इज कॉल्ड हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड. सो बेसिकली जो राइटर है वो बोलना चाहता है कि जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है दैट इज एक्चुअली हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड, और उसने काफी वैलिड पॉइंट्स दिए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए. सो वो पॉइंट्स मैं आपका डिस्कस करता हूँ. जैसे उन्होंने ये बताया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जब जो होमो सेपियंस थे, they were basically nomads. They were, or as it is mentioned in the book, they were foragers. कभी एक जगह पे वो settle नहीं करते थे. They did not have permanent settlements. They used to travel from place to place, hunting food, gathering food, taking shelter wherever they feel, मतलब जहाँ मन किया, जहाँ पे वो थे at that point of time. No permanent settlements. But as suited to the agricultural revolution, they had to find permanent settlements. और उसका basically reason ये है कि जब उन्होंने crops उगाना शुरू किया, so हमें ऐसा लगता है that we domesticated crops, but actually it's the other way around. These crops domesticated us, because these crops require so much of care and so much of manpower throughout the day. जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट का एग्जाम्पल दिया है. वीट को आपको प्लो करने के लिए और ग्रो करने के लिए यू नीड टू क्लियर द लैंड. उसके लिए आपको पूरा आग जला के लैंड क्लियर करनी पड़ती है. उसके बाद पानी से लेके हवा, सनशाइन, everything has to be absolutely perfect. Then you have to guard it from pests. So basically ये कहने का मतलब है कि humans got involved in so much activity कि they did not have time to do anything else. Another important point is कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद से बहुत मेजर डिजीजेस आने लगे लोगों में, और वो इसलिए क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिएंट नीड्स थी वो सिर्फ एक या दो क्रॉप से ही पूरी हो रही थी एज कम्पेयर टू प्रीवियसली, जब उनकी नीड्स फ्रूट से भी पूरी हो रही थी, एनिमल्स से पूरी हो रही थी, एंड वॉट एवर सोर्सेज दे हैड एट दैट टाइम. सो यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि जब से क्रॉप्स उगाना शुरू किया एंड डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करी बेसिकली, सो
a lot of problems started cropping up. So ये एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया उन्होंने. एंड द नीड्स वर एवर ग्रोइंग. जैसे ही लगता था कि हम ज्यादा क्रॉप्स उगाएंगे to sustain ourselves, they all of a sudden realized that they had more mouths to feed. Because क्या था कि when you have permanent settlements, you tend to think about the future a little more. इससे पहले क्या था कि they, for example, talking about reproducing babies and taking care of babies, taking care of elders. तो वो कहीं कुछ हद तक humans को burden लगता था because उनकी travel restrict होती थी. बट जब परमानेंट सेटलमेंट्स में आए ये लोग, तो इनको पता चला कि दे कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. आज से 5-10 साल बाद कि आज हम अगर इतना उगाएंगे तो ये हमें इतने टाइम तक सर्व करेगा. बट एट द सेम टाइम व्हाट दे डिड नॉट रियलाइज प्रोबेबली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो फैक्ट ये था कि the population was ever growing. मतलब the mouths to feed were growing. And the settlements were so congested because एक confined area होता था. So उसी में लोग people were growing up, and so basically diseases also started cropping up. So एक ये point काफी interesting लगा मेरे को. The major shift from the cognitive revolution to the agricultural revolution. So this is what I want to share. Very insightful actually. I found it very insightful. बाकी लोगों का फीडबैक क्या है, क्या कहेंगे? कोई कुछ शेयर करना चाहता है? 1 2 लाइन्स. हाँ जी, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ नमन जी से. एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, एक्चुअली वेस्टर्न साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि ह्यूमंस वेर फ्रूगिवोरस, यानी वो केवल फल पे निर्भर करते थे अपना जीवन. क्या ये बुक में उनके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में? इस बुक में एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जो एक्सप्लेनेशंस हैं, बिकॉज क्या है कि उस टाइम के लिए देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस. देयर इज सब्सटैंशियल एविडेंस बट देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस टू सपोर्ट कि ह्यूमन सिर्फ फ्रूगिवोरस होते थे या हर्बीवोरस होते थे या ओमनीवोरस होते थे या सिर्फ कार्निवोरस होते थे. सो देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस, बट it depended from one group to another. But yes, mostly at that point of time जो term है that is Neanderthals, जो उन्होंने दिया है, जो first set of humans जो develop हुए थे. So they I mean depended a lot on animals also at that point of time and their hunting abilities, because उनकी hunting abilities बहुत ज़्यादा superior थी. So they relied a lot on animals. On the other hand, fruits were something जो उनके डाइट में होता था. जैसे वो कलेक्ट करते थे या मतलब जैसे उन्हें कभी किसी ट्री के नीचे मिल गया या कुछ हो गया, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला है दैट दे ओनली यूज्ड टू रिलाई ऑन फ्रूट्स और एनिमल्स फॉर दैट मैटर. मतलब इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ. ओके, ठीक है, थैंक यू.